یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 28 जनवरी के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी. भारतीय रियासत महाराष्ट्र में त्यारा गिरकर तबाह. नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक. दादा गेले तर अजूनही मिनीसोटा में एलेक्स प्रेटी की हलाकत के बाद एहतजाज. ट्रंप का कशीदगी कम करने का ऐलान. Tom Homan, as you know, is in Minnesota now. He's meeting with the governor and he's meeting with the mayor, I think later. And I hear that's all going very well also. जानिए क्या इंडिया यूरोप मुआहिदा. बरतानवी वजीर आजम का दौरा चीन. सदर ट्रंप के खिलाफ बढ़ती आलमी मज़ाहमत है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकत से दुनिया को जगा दिया है. बड़ी अनस्टेबल दुनिया है इस वक्त, क्योंकि हर कोई पार्टनर्स भी देख रहा है और अलायंसेस भी तलाश कर रहा है. ईरान के खिलाफ अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे. सऊदी अरब का ऐलान. कतर के वजीर आजम का ईरान के वजीर खारिजा से राब्ता. कशीदगी में कमी की हिमायत. पाकिस्तान की वादी तीरा से नकल मकानी. ग्रैंड जिरगा और वफाक व सूबे में बयानियों का टकराव. ملیټری اپریشن فوجي اپریشن ته څو کړی دي دغه څه نتیجه وروتي وي دغه سره چې کم دي امن روغلی وي نو ټیک ته یو بل موقع یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں جس میں یہ ساری مائیگریشن وغیرہ جو ہے کہ اور اس کا سارا پیکج ہے بھی. افواج جو ہیں فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. پاکستانی صدر آصف علی زرداری کی ابوظہبی میں محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات. لاہور میں بسنت کے حوالے سے مزید نئے قواعد و ضوابط متعارف. کسی شخصیت کی تصویر والی پتنگ نہیں اڑ سکتی. منگل کو جاری کیے گئے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بسنت کے دوران کسی بھی پتنگ پر کسی مذہبی کتاب، مذہبی مقام یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی ہوگی. ہم روتے کیوں ہیں؟ جانیے آنسوؤں کے پیچھے چھپی سائنس کے بارے میں. انڈین گلوکار اریجیت سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب کوئی نیا کام نہیں لیں گے. اس کے علاوہ مزید عالمی خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. بھارتی ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حادثہ بدھ کی صبح بارامتی میں پیش آیا جب ایک چارٹر طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن DGCA کے مطابق طیارے میں اجیت پوار کے علاوہ 4 دیگر افراد بھی سوار تھے، جن میں 2 کریو ممبر اور پوار کے 2 معاون شامل تھے. حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے. اجیت پوار کے نجی معاون انل ڈکلے نے BBC مراٹھی سے گفتگو میں اس حادثے کی تصدیق کی. ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حادثہ صبح 8:48 پر لینڈنگ کے دوران پیش آیا. اجیت پوار کے سیکیورٹی گارڈ بھی طیارے میں موجود تھے. یہ چارٹر طیارہ LJ-45 ماڈل کا تھا جو بمبئی سے بارامتی جا رہا تھا. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا کہ اجیت پوار جی ایک مضبوط رہنما تھے جن کا عوام سے گہرا تعلق تھا. وہ ایک محنتی شخصیت کے طور پر بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے جو مہاراشٹر کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہتے تھے. انہوں نے مزید لکھا کہ انتظامی معاملات کی ان کی سمجھ اور غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانے کا ان کا جذبہ بھی قابل ذکر تھا. ان کی ناگہانی موت نہایت صدمہ انگیز اور افسوسناک ہے. ان کے خاندان اور بے شمار چاہنے والوں سے اظہار تعزیت. مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انیل دیشمکھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رو پڑے اور کوئی جواب نہ دے سکے.
कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने खबर रसा इदारे पीटीआई को बताया कि तैयारा हादसे की तस्वीरें बहुत ही चौंका देने वाली हैं। मैं अजीत पवार की मौत पर अपने दुख का इजहार करता हूं। शिवसेना की राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने खबर रसा एजेंसी ANI को बताया कि ये बहुत अफसोसनाक खबर है। अगरचे मेरे उनके साथ बहुत से मामलात पर इख्तलाफात थे, लेकिन वो एक बहुत ही मुखलिस और मेहनती शख्स थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया मिनीसोटा में कुछ हद तक कशीदगी कम करने जा रही है। अमेरिकी सदर का ये बयान वफाकी इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों एक और अमेरिकी शहरी की हलाकत के बाद सामने आया है। ट्रंप ने मंगल को फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि असल बात यह है कि ये बहुत खौफनाक था। दोनों वाकयात बहुत खौफनाक थे। I think the whole thing is terrible. I don't like the fact that he was carrying a gun that was fully loaded and he had 2 magazines with him, and it's pretty unusual. But nobody knows when they saw the gun, how they saw the gun, everything else. Bottom line, it was terrible. Both of them were terrible. The other was terrible too. And I'm not sure about his parents, but I know her parents were big Trump fans. Makes me feel. याद रहे कि जनवरी के अवाइल में रीनी गुड को एक इमिग्रेशन अफसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद इस हफ्ते के आखिर में बॉर्डर एजेंट्स ने एलेक्स प्रीटी को रोकने के बाद कत्ल कर दिया। एलेक्स प्रीटी की मौत ने मुकामी सतह पर एहतजाज को दोबारा भड़का दिया और मुल्क भर में अवामी गम गुस्से को जन्म दिया, जिस पर दोनों जमातों के कानून साजों ने भी तनकीद की। ट्रंप के बयानात इस बात की ताज़ा अलामत हैं कि उनकी इंतजामिया मिनीसोटा में अपनी कार्रवाइयों को पीछे ले जा रही है। पीर को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने मिनीसोटा मिशन के सरबराह और बॉर्डर पेट्रोल के ओहदेदार ग्रिगोरी बोविनो को वहां से हटा दिया था। DHS ने कहा कि व्हाइट हाउस के बॉर्डरजार टॉम होमन को वहां तैनात किया जा रहा है, जो इस हफ्ते मुकामी हुकाम से मुलाकात करेंगे। मंगल को होमन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने मिनीसोटा के गवर्नर टिम वाल्स, मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री और मुकामी कानून नाफिज करने वाले हुकाम से मुलाकात की है। रियासत लोवा में रैली से कबल साफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने एलेक्स प्रीटी, जो एक अस्पताल में ICU नर्स थे, के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक वाकया करार दिया। जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो प्रीटी को डोमेस्टिक टेररिस्ट कहने से इत्तफाक करते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने ये नहीं सुना। उन्होंने मजीद कहा कि इसे हथियार नहीं रखना चाहिए था। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा कि एलेक्स प्रीटी को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो तसादुम के दौरान हथियार लहरा रहा था, लेकिन मुकामी हुकाम का कहना है कि उसका असला कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड था और उन्हें उस वक्त गोली मारी गई जब असला उनसे ले लिया गया था। DHS ने कहा कि एजेंट्स ने अपने दिफा में फायरिंग की। उनके मुताबिक जब एलेक्स प्रीटी को गैर मुसल्ला करने की कोशिश की गई तो उसने मजामत की। तहम ऐनी शाहिदीन और मुकामी हुकाम ने इस बयान को रद्द किया है। उनका कहना है कि उसके हाथ में हथियार नहीं बल्कि फोन था। एलेक्स प्रीटी की हलाकत ने मुकामी आबादी को मुश्तइल कर दिया और रियासती व शहरी हुकाम की जानिब से ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो अपने 3000 इमिग्रेशन एजेंट्स और अफसरान को इस इलाके से वापस बुलाएं। We want justice. We know the federal government is not investigating. They are lying to the American people. They are denying us justice. It is time for the state to do their job. Say it. Do your job. Do your job. फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप ने मिनीसोटा ऑपरेशन का दिफा करते हुए कहा कि हमने वहां से हजारों खतरनाक मुजरिमों का कला कमा किया है, इसलिए उनके जराइम के अदाद शुमार बेहतर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये सब ठीक चल रहा है। हमारे पास अब टॉम होमन मौजूद हैं और हम कशीदगी कम करेंगे। कुछ रिपब्लिकन रहनुमाओं और कानून साजों ने एलेक्स प्रीटी की मौत की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। सामीन, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा, जिसे मदर ऑफ डील्स भी कहा जा रहा है, सिर्फ दो ताकतों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के बारे में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी सियासत से भी है। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान तिजारत 2024 में 142 अरब डॉलर से ज्यादा की थी और ये अदाद शुमार मुतासिर कुन भी हैं और मजबूत ताल्लुक की निशानी भी। लेकिन इसके बावजूद तिजारती मुज़ाकरात 2 दहाइयों से मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे। इससे सवाल पैदा होता है कि आखिर अब क्या चीज़ बदली।
इसका जवाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के फैसलों से जुड़ी गैर यकीनी और उनसे पैदा होने वाला आलमी मंजरनामा है जो तेजी से बदल रहा है। ट्रंप ने तिजारती महसूलात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन अक्सर उन्होंने अपने इत्तेहादियों को इस हिकमत अमली से सजा भी दी है जो उनकी सोच से इतफाक नहीं करते। अमेरिका ने इंडियन दरामदाद पर भी 50% महसूलात आयद कर दिए थे, जिनमें 25% रूस से तेल की खरीदारी न रोकने का जुर्माना था। चंद यूरोपीय ममालिक ने भी हाल ही में उस वक्त महसूलात की धमकियों का सामना किया जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की अमेरिकी ख्वाहिश पर हामी नहीं भरी। ट्रंप अपनी धमकी से बाद में पीछे हट गए थे, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को झटका लग चुका था। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुजव्वज़ा तिजारती मुआहिदा महज दो मुआशी ताकतों के दरमियान तिजारत तक महदूद नहीं है, बल्कि बदलती आलमी सियासत की अक्कासी भी करता है। 2024 में दोनों के दरमियान तिजारत 142 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई थी, मगर 2 दहाइयों से रुके मुज़ाकरात अब उस वक्त आगे बढ़े हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतवक्के टैरिफ पॉलिसियों ने आलमी बेयकीनी को जन्म दे दिया है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इत्तेहादी ममालिक पर भारी महसूलात और धमकियों के बाइस यूरोप, इंडिया और दीगर रियासतें नई तिजारती शराकतदार तलाश कर रही हैं। इसी तनाजुर में बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर का चीन का दौरा, कनाडा और यूरोप के चीन से रवाबत और यूरोपीय यूनियन का लातीनी अमेरिका ब्लॉक से मुआहिदा अहम पेशरफ्त समझी जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इंडिया यूरोप मुआहिदा चीन पर इन्हिसार कम करने और अमेरिकी दबाव का मुतबादल तलाश करने की एक कोशिश है। अगरचे इस मुआहिदे पर दस्तखत और मंजूरी में वक्त लगेगा, मगर इसे ट्रंप की मुआशी हिकमत अमली के खिलाफ बढ़ती आलमी मज़ाहमत की वाज़ेह अलामत करार दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर आयशा सदीका। हम उनसे जानते हैं कि ये जो भारत और EU के दरमियान तिजारती मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे के अमेरिका और खसूसन पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। डॉक्टर आयशा सदीका। जो यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक तो बड़े सालों से नेगोशिएट हो रहा था। दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि ऐसे फेज में है यूरोप जिसमें ट्रंप साहब ने उन पे एक तरह से भला किया है कि वो जो इम्बिलिकल कॉर्ड है ना अमेरिका के साथ, एक तरह से अगर कटी नहीं है तो बहुत कमजोर हो गई है। सडनली यूरोप ने एक नींद से उठा है, वोकन आउट ऑफ अ स्लम्बर, और उसने रियलाइज किया है कि भाई हम तो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। हमें अपनी इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी है, और उसके लिए हमें अमेरिका से हट के हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब कि नेटो को, मतलब कि ग्रीनलैंड पे हमला ना भी करे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो कह के डरा डरा के वो उन्होंने नेटो को तो बहुत हद तक कमजोर कर ही दिया। ये और बात है कि पुश बैक दी। अब देखें ना, आप बर्तानिया का देखें, क्योंकि इतनी बदमजगी यहाँ की स्ट्रीट्स पे है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी बर्तानिया ने तो कुछ किया ही नहीं अफगानिस्तान वॉर में, ये तो पीछे थे, हम ही सारा कुछ करते थे। उन्होंने कहा जी हमारे बंदे मारे गए हैं, खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। इन्होंने रियलाइज किया कि अगर फर्ज करें 3 साल बाद चला भी जाता है डोनाल्ड ट्रंप, तो जो नेक्स्ट आएगा क्या वही पॉलिसीज होंगी, मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उस दिन के इंतजार में कि पॉलिसी वापस, पॉलिसी रिवर्सल हो, कितनी रिवर्सल होगी। बेहतर ये है कि एक इंडिपेंडेंट रूट इख्तियार किया जाए। एंड इसलिए 2 बिलियन लोगों की मार्केट है इंडिया, इट्स अ बिग मार्केट, और वो उसकी तरफ जाहिर है वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा भाई लेट्स ओपन अप। मज़े की बात ये है कि जाहिर है जब वो ओपन अप करेंगे तो पाकिस्तान जो GSP प्लस और कोटा वगैरह था, वो बल्कि मैं फरूख सलीम का कोई देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो वो इफेक्ट होगा। पाकिस्तान का शेयर जो है वो इफेक्ट होगा। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल। अब जाहिर है उसमें आप ये देखें, जो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रही थी, तो उसमें जो एक बहुत
نریندر مودی نے جسے کہتے ہیں نا اڑی ڈالی تھی جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہماری مین پاور کے لیے بھی کھولو، ہمیں ویزے، ورک ویزاز آئیں اور ایک الگ کیٹیگری بناؤ جو کہ پھر ان کو یہ اوپننگ اپ ڈسپائٹ کہ یو کے میں امیگریشن کا ایک ایشو ہے ان کے لیے کرنی پڑی، بیکاز میوچل ہوتا ہے نا۔ یورپ کے ساتھ بھی ظاہر ہے آئی ٹی ہے اور انڈسٹریز ہیں، سو مین پاور کی بھی ہوگی بات، ظاہر ہے جب آپ مارکیٹ ایکسیس دیں گے تو آپ کو بھی تو مارکیٹ ایکسیس چاہیے ہوگا نا، تو انویسٹمنٹس ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ سو اٹس گڈ فار انڈیا ڈیفینیٹلی اینڈ اٹس گڈ فار یورپ۔ یورپ انڈیا ہی نہیں بلکہ ظاہر ہے چائنا کی طرف بھی دیکھ رہا ہے مارکیٹ ایکسیس۔ انفیکٹ اگین میں بار بار ذکر برطانیہ پہ لے آتی ہوں جو کہ یورپ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، تو امریکہ نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ڈانٹا تھا لیبر گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ جو اتنی سینٹرل لوکیشن پہ چائنا کو ایمبسی نہ دو، تو وہ 2 دن پہلے برٹش گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ کیئر اسٹارمر جو ہے برٹش پرائم منسٹر حال میں ایک تھوڑے دنوں میں جانے والے ہیں چائنا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حرکات سے دنیا کو جگا دیا ہے، بڑی انسٹیبل دنیا ہے اس وقت، کیونکہ ہر کوئی پارٹنرز بھی دیکھ رہا ہے اور الائنسز بھی تلاش کر رہا ہے، اور فار دا فرسٹ ٹائم ایک یو ایس سیکیورٹی جو فریم ورک تھا اس پہ ڈپینڈنٹ دنیا جو ہے اب اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی باتیں کر رہی ہے، سوچ رہی ہے۔ صحیح ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، آپ کا شکریہ۔ سامعین، سعودی عرب نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف کسی بھی طور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر رابطہ کیا اور محمد بن سلمان نے انہیں یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی یا کسی بھی فریق کی طرف سے کسی بھی حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ان کی منزل کچھ بھی ہو۔ ایرانی صدر نے اسرائیل اور امریکہ پر حالیہ مظاہروں میں مشتعل افراد کو اکسانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں ممالک نے تصور کیا تھا کہ ان کارروائیوں سے وہ ایران کو شام یا لیبیا میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ کہ منظر عام پر ایرانی قوم کی وسیع اور شعوری موجودگی نے ان کے مقاصد اور سازشوں کو شکست دے دی۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی خطرے یا کشیدگی کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور خطے میں دیر پا امن اور سلامتی کے قیام کے لیے تعاون کے لیے تیار ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اس رابطے سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور ایران کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نیز خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے والی کوششوں کی حمایت میں ریاست قطر کے موقف کا اعادہ کیا اور کشیدگی میں کمی اور پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی تیراں سے نقل مکانی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اتوار کو جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں پورے ضلع خیبر کی اقوام کا گرینڈ جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور برف باری میں بوڑھے، خواتین اور بچے زبردستی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق جرگوں میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2 ماہ میں متاثرین کو واپس بھیج دیا جائے گا، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے بھی جاری کیے ہیں۔ آپریشن فیصله په بند کمرو کې کېدله او مولا پته ولګېده. زه ورته روچا شوم، مو ورته وویل چې ګوره دا فیصله د تاسو غلطه رو، که یو 22 ملیټري اپریشن فوجي اپریشن یې تاسو کړي دي، د هغو څه نتیجه راوتې وي، د هغو سره چې کم دي امن راغلی وي، نو ټیک ته یو بله موکه
दूसरी जानिब वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया है कि वादी तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा और नकल मकानी सूबाई हुकूमत और मुकामी जिरगे के दरमियान तयशुदा इंतजाम है। उनका कहना है कि जिरगा TTP और हुकूमत दोनों से मिला था और फौज का इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो TTP के पास के कि हमारी यहाँ पे माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट होनी है, तो कोई एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए उस सिलसिले में, और वो जाके फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले वही लोग जो हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो उनके लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन ये सारे मिश्रान जो हैं वो दोनों को मिले। TTP जो तकरीबन अपने बाल बच्चों के समेत वहाँ पे रहते हैं, 400-500 के करीब उनकी तादाद है, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये मेरे पास गवर्नमेंट का इख्तियार आपके पास है, ये जो है ना ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है, बीच में हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अफवाज जो हैं, फ़ौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई, और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। तीरा से नकल मकानी पर सूबाई और वफाकी हुकूमतों के बयानात एक दूसरे से मुतसादम हैं। इस सिलसिले में हमने बात की मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अली से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वफाकी वज़रा और वज़ीर आला के बयानात का एक दूसरे से मुतसादम होना क्या मानी रखता है। क्या ये दोनों हुकूमतों की मुश्तरका जिम्मेदारी नहीं, मजीद ये कि इस वक्त तीरा के मौजूदा हालात क्या हैं। सैयद मोहम्मद अली: देखिए, वादी तीरा के काफ़ी बड़ा इलाका है, लेकिन ख़ास तौर पे वहाँ की एक जो सब डिवीज़न है बाग, ये वहाँ के हवाले से खुसूसी सूरत हाल है, और वहाँ तकरीबन 19,000 घर हैं और 94,000 वहाँ की आबादी है, और वहाँ की जो ये और हर साल वहाँ सर्दी होती है। इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ी है, पूरे दुनिया में सर्दी ज़्यादा पड़ी है, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है। लेकिन मौसम का उसकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एक जानिब से अफगानिस्तान से लगता है, तो वो बड़ा सूटेबल और कन्वीनियंट है अब TTP के लिए कि वो उसको इस्तेमाल करता है TTP वहाँ पे। और क्यों इस्तेमाल करता है? एक एस्पेक्ट उसका ज्योग्राफी है, दूसरा एस्पेक्ट वहाँ की इकोनॉमी है। इन 94,000 की आबादी के जो 19,000 घर या खानदान हैं, उनमें 12,000 एकड़ के ऊपर पोस्ट की काश्त की जाती है। ये वहाँ की इकोनॉमी है, जहां से आपके वजीर आला का भी ताल्लुक है। तो ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि बानी PTI ने बड़ा सोच समझ के चुनाव किया है अपने चीफ मिनिस्टर का, और उसको आप लिंक कर लें इस बात से कि क्यों मुज़ाकरात पे वो जोर दे रहे हैं TTP से, क्योंकि TTP डीपली इंट्रेंच्ड है इस बाग सब डिवीजन में, और इस 12,000 एकड़ के ऊपर जो हर साल पोस्ट की काश्त की जाती है, ये फॉल में की जाती है और मौसम सरमा में इसकी कटाई होती है। और जब मौसम सरमा में इसकी कटाई हो जाती है तो इसको प्रोसेस करके बाड़े और पेशावर के जरिए से मार्केट्स में पहुंचाया जाता है, जिसके लिए ये खानदान जो कि पोस्ट की काश्त और मनशियात की पैदावार में इन्वॉल्व हैं, वो 60 to 70% रीलोकेट हर साल करते हैं। ये है उसकी मईशत
اور ایک اینول پروسیس. اب بڑا زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کیا سیاسی طور پہ پشاور کی حکومت نے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے دیکھا کہ ایک تو جو آپریشن کی بات ہے اس پہ واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں پاکستان میں پچھلے سال 75,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں ہوئے ہیں. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں KPK سے کہیں زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں, اور تقریباً کوئی 230 سے 232 انٹیلیجنس بیس آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں, روزانہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہو. اور وہ ایک میں واضح کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ کہ اس کا انفینٹری کے جو روایتی آپریشن جس طرح 10 سال پہلے ہوتے تھے, ضرب عزب ہوتا تھا کہ جی ایک انفینٹری موو کر رہی ہے پیچھے, اس کو اسپیئر ہیڈ آرمرڈ کور کر رہا ہے, اس کو فائر سپورٹ آرٹلری دے رہی ہے, یہ اس نوعیت کے آپریشن نہیں ہوتے. یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی ڈیرے کے اوپر کوئی ایک بندہ دہشت گرد موجود ہے, اس کی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے تو صرف اس انڈیویجول کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. وہ کوئی لارج سکیل آپریشن جو ہے, کوئی بمباری, کوئی ڈرون اٹیک, ہائیسٹ لیول پہ جو پاک فوج کی قیادت ہے, اس سے میری اس پہ بڑی تفصیل سے مشاورت ہوئی ہے کل. تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا, انہوں نے کہا ہماری حکمت عملی بدل اس لیے چکی ہے کہ لارج سکیل آپریشن فوج کو بھی سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں ہماری بھی کیجویلٹیز ہوتی ہیں, ادھر بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اور پھر گریونس بھی کریٹ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ این ایفیشینٹ اسٹریٹجی. تو زیادہ ایفیشینٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنس کی بیسس پہ, چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہو, الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو, سرویلانس ہو, ڈرونز کے ذریعے سے ہو, کمیونیکیشن انٹرسپٹ ہو, آپ انڈیویجول کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے لارج آپریشن نہیں ہوتا. تو یہ پہلے بتانا صوبائی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ کوئی لارج اسکیل آپریشن نہ کیا جا رہا ہے, نہ اس کا فیصلہ ہے, اور نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیسٹ لیول آف اتھارٹی سے کہ نہ کیا جائے گا. اور آخری بات کہ یہ جب فصل کٹی ہے اور لوگوں نے جو پوسٹ کی کٹائی ہے اس کو جا کے اب پروسیس کر کے بیچنا ہے منڈیوں میں, تو یہ ہر سال وہ 60-70% آبادی وہاں سے چلی جاتی ہے. دس از دا اکانومی دیئر. اور پھر اب انہوں نے بڑی زبردست سیاسی حکمت عملی یہ بنائی کہ انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جناب نے وہاں پہ 6 آفریدی ٹرائبز ہیں, اس میں سے ہر ٹرائب میں سے 4 نمائندے ہوتے ہیں, جرگے میں 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں. 26 لوگوں کا یہ جرگہ ہے, اور یہ 26 لوگوں کے جرگے نے مل کر KPK گورنمنٹ سے جو صوبائی حکومت ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا کہ جناب آپ ہمیں اس دفعہ ریلوکیشن کی کمپنسیشن دے. اور یہ کمپنسیشن PDMA جو ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بجٹ میں سے 4 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے ہیں. تو ایک طرف سے انہوں نے اس پہ سیاست بھی کر لی کہ جناب, اور آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر کا دیکھا ہوگا, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے, نہیں تو میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں کوئی آپریشن کی بات نہیں ہے, وہ سردی کی وجہ سے ریلوکیشن کی بات ہے جو کہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کو آپریشن سے لنک کرنا اور ایک جسٹیفیکیشن اور ایک نیریٹو بنانا, اور پھر تھی مذاق خیز بات ہے کہ جہاں پہ وہ سے زیادہ TTP انٹرینچڈ ہے اور جو وہاں پہ 3 ارب روپے بھتہ یا عشر وصول کر رہے ہیں ان پاپی کلٹیویٹر سے اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کی فائنینسنگ کے لیے, وہاں پہ آپ کے خیال میں امریکہ کے ایئر بیس بنائے گا؟ مطلب دس از ریڈیکولس. سید محمد علی, وقت دینے کا شکریہ. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. گفتگو کے دوران تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون اور نئے موقعوں پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. دونوں ممالک نے خطے میں امن, ترقی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے عزم کی تجدید کی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جیسے جیسے بسنت کا تہوار قریب آتا جا رہا ہے, حکومت کی جانب سے نئی پابندیوں کے نفاذ کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے. حکومت نے 25 سال بعد پہلی بار بسنت منانے کی اجازت دی ہے, لیکن ساتھ ہی کئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے. یہ پابندیاں کیا ہیں؟ جانیے روباب
बतूल से। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में तकरीबन 2 दहाइयों बाद बसंत मनाने की इजाज़त दी है, लेकिन बहुत सी कंडीशंस के साथ। और जैसे जैसे बसंत का त्यौहार करीब आता जा रहा है, हुकूमत की जानिब से नित नई पाबंदियां भी सामने आ रही हैं। मंगल को जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बसंत के दौरान किसी भी पतंग पर किसी मजहबी किताब, मजहबी मकाम या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंग भी नहीं उड़ाई जा सकेगी। सिर्फ बगैर तस्वीर, एक रंग की या कलरफुल पतंगों की इजाजत दी गई है। ये अहकामात दफा 144 के तहत फौरी तौर पर नाफिज किए गए हैं और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सेनेटर मशाल यूसुफजई ने एक निजी टीवी चैनल पर बसंत के मुतालिक बात करते हुए कहा था कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पतंग 804 की होगी। इनका मजीद कहना था कि मुमकिन है कि बसंत का प्रोग्राम आखिरी वक्त पर मनसूख भी कर दिया जाए। उनके मुताबिक हुकूमत को खौफ होता है क्योंकि ऐसी सरगर्मियां अक्सर पीटीआई या इमरान खान के हक में चली जाती हैं। नई पाबंदियों के बाद पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बसंत करीब आते ही हाइब्रिड निजाम बुखलाहट का शिकार नजर आता है। उन्हें खौफ है कि एक बार फिर आसमान इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगों से भर जाएगा। इसी तरह हमाद अजहर ने एक्स पर लिखा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत को ये खौफ लाहक है कि कहीं अवाम बसंत के दिनों में पतंगों पर 804 और इमरान खान की तस्वीर न लगा दें। हुकाम का कहना है कि इन इकदामात का मकसद अमन आमा, मजहबी हम आहंगी और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। सामीन, रोना इंसानी जज्बात का एक फितरी इजहार है जो गम, दबाव, गुस्से या हत्ता के खुशी में भी सामने आ सकता है। साइंस के मुताबिक इंसान वाहिद जानदार है जो पेचीदा जज्बात के जेर असर आंसू बहाता है। माहिरीन बताते हैं कि आंसू सिर्फ नमकीन पानी नहीं बल्कि प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स और दीगर अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं जो आंखों की हिफाजत और जरासीम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीक के मुताबिक आंसू 3 अकसाम के होते हैं। बेजल आंसू जो आंख को नम रखते हैं, रिफ्लेक्स आंसू जो गर्द या जलन के रद्द अमल में आते हैं और जज्बाती आंसू जो ज़हनी कैफियत से जुड़े होते हैं। जज्बाती आंसू दिमाग के उन हिस्सों के जरिए खारिज होते हैं जो एहसासात और जज्बात को कंट्रोल करते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक रोना सिर्फ ज़ाती दुख नहीं बल्कि हमदर्दी और समाजी ताल्लुक का भी इजहार है। आंसू दूसरों के लिए एक इशारा होते हैं कि हमें सहारा दरकार है और यही वजह है कि रोना बाज़ औकात लोगों के रवैये में नरमी और ताउन पैदा करता है। अगरचे कई लोग रोने के बाद सुकून महसूस करते हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि ये असर हालात और इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रद्द अमल पर मुनसर होता है। मजमूई तौर पर साइंसदान मुत्तफिक हैं कि आंसू इंसानी इर्तिका, जज्बात और समाजी रिश्तों में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से लोग रोने के बाद सुकून महसूस करने का दावा भी करते हैं, लेकिन साइंसदानों में इस बात पर बहस जारी है कि आया ये असर वाकई होता है या नहीं। इंडिया के मारूफ और मकबूल गुलकार अरिजीत सिंह ने ऐलान किया है कि वो अब बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया गाना नहीं गाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में 38 साला गुलकार ने अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एक खूबसूरत सफर था जिसे अब वो यहीं खत्म करना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर करोड़ों मद्दाहों ने अफसोस, मोहब्बत और खराज तहसीन का इजहार किया है। कई सारिफीन ने अरिजीत की आवाज को अपनी पहली मोहब्बत, टूटे दिलों और जिंदगी के मुश्किल लम्हों का साउंड ट्रैक करार दिया, जबकि बाज ने लिखा कि लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो अपनी आवाज में हमेशा जिंदा रहते हैं। 2011 में फिल्म मर्डर 2 से बॉलीवुड कैरियर का आगाज करने वाले अरिजीत सिंह ने आशिकी 2, दिल संभल जा जरा और दीगर बेशुमार मकबूल गीतों से एक पूरे अहद को आवाज दी। अगरचे प्लेबैक सिंगिंग से उनकी अलहदगी ने मद्दाहों को उदास कर दिया है, ताहम कई लोग इसे एक नए तख्लीकी सफर की शुरुआत भी करार दे रहे हैं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।
बरतानिया के वजीर आजम सर कियर स्टारमर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं, जबकि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात जुमेरात के रोज मुतवक्के है। 2018 के बाद ये पहला मौका है कि किसी बरतानवी वजीर आजम ने चीन का दौरा किया है। स्टारमर बरतानिया के तकरीबन 60 कारोबारी और सकाफती रहनुमाओं के साथ सफर कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि तिजारती ताल्लुकात को फरोग दिया जाएगा। बीजिंग के सफर के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस दौरे के दौरान बड़ी तादाद में बरतानवी कंपनियों के वफ्द का शामिल होना इस बात का सबूत है कि इस दौरे के दौरान ऐसे मौके मयसर होंगे जिससे उन्हें यकीनी तौर पर फायदा होगा। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से कोई दरखास्त पेश नहीं की गई है। BBC फारसी के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि कुछ ममालिक बतौर वासिता बातचीत कर रहे हैं और ईरान उनसे राब्ते में है। उन्होंने जोर दिया कि फौजी धमकियों से बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो धमकियों और गैर मंतकी मुतालबात को ख़त्म करना होगा। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब करके हालिया दिनों में बारहा ऐसी खबरें मंजर आम पर आई हैं कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे का ख़्वाह है। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाने के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ केस पर हुक्म सुनाते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है और गुज़िश्ता समाअत पर भी सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे।